Morning event, Demo Day 1, poster presentation on ideas, POC and linkage with Innovation Ambassador Expert for Membership Support Manager, Yukti NIR. Welcome to all our dignitaries, Director of SGMC, School of Journalism and Mass Communication, Dr. Ruchika Gupta ma'am, and Director of SBM, Dr. S.K. Verma sir. I would like to invite our judge of this event, Mr. Rahul Kumar sir, from SBM. Now I would like to present our performing groups. So for team number 1, we have Vaishnavi, Rinki Sharma, Nisha, Soumya Tiwari. SVM welcomes everyone. SVM is the leading group, that is I, Vaishnavi, leading SVM, has come with a SVM outlet, that is SVM Innovation. It is a business outlet that comes under SVM groups, and the project undertaken by SVM in SVM Innovation is Smart Western Toilets. We have come up with this project with the team members Rinki Sharma and Nisha. Rinki Sharma is going to explain you why this project has come up, and Nisha will also explain you the concept of this project. Soumya Tiwari of our group is suffering from some illness, so she hasn't been here for this presentation. So I, Vaishnavi, will also take her part and will explain you the financial agendas of water management and sanitary conveniency of the human population globally. That is, SVM has considered businesses units that are B2C, business to consumer units, and B2G, business to government, and B2B, business to business. But here, the main target of our SVM Innovation is that we have taken business to government, because we are basically taking Smart Western Toilets manufacturing and assembling in a bulk. So we are not going to supply to the business and business to consumers until and unless we are successful for that. SVM Innovations has come up with a new concept to the market, that is Smart Western Toilets. The poster is here. This is the wall basin, which will be connected to the wall mounted toilets. Okay, there are many types of washrooms, many types of basins or commodes you see, but we have taken wall basin because if we connect to the wall mounted toilets, it will be convenient for the cleaning purposes. And here, as you see, we have a cisterns which is connected. The flushes will automatically flush your wastage. When you go there, you will keep your hand and the water will automatically come and you will able to wash your hands. The concept has been brought up with the 3 main agendas, that is water management. These washrooms, because of these infections and all, we have UTIs, we have cholera, we have jaundice, we have many types of diseases that we are suffering from. That's why we have come up with the project. कैरियर हमारा क्लीनिंग हैंडवॉश में यूज़ होता है और 4 से 6 हमारा क्लीनिंग में यूज़ होता है, और डेली हमारा पर्पस 10 से लेके 15 लीटर हमारा यूज़ होता है डेली वाटर. और हाइजीनिक एंड हेल्थ बेनिफिट्स में जो वुमेन्स होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. 1741 केसेस हो चुके हैं UTI के, और 30,000 प्लस से इस प्रॉब्लम से उन लोगों की डेथ भी हो चुकी है. और पूरे ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ वुमेन 25% से लेकर 45% जो वुमेन्स हैं उन्हें ये बीमारी हो चुकी है ऑलरेडी. ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लेडीज़ों को ये होती है कि मतलब वॉशरूम, जैसे कि वैष्णवी ने बताया कि लोग बहुत वेट करते हैं, बहुत से लोग तो छोड़ ही देते हैं. उसमें हम जो लेडीज़ होती हैं हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है इन्हें यूज़ करने में. और वाटर भी है, वाटर मैनेजमेंट हमने इसलिए 10 से लेकर 15 लीटर आपका डेली यूजेस में आपका वाटर वेस्ट ही होता है. और ये जो हमारा जो प्रोडक्ट है इसमें बास्केट से तुरंत जॉइंट है उसके जस्ट ऊपर, उसी वाटर से आपका फ्लश भी होगा. से हम अदर नीड और अदर थिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये AI जनरेटेड है और ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. Totally solar headphones. So I would like to my team members to introduce the product. So here is our product, which is totally based on the solar panels. So here we have introduced our panel. An innovative product, and nobody has used this idea yet. So there is our headphone, and here we will implement our idea of solar panels. And just because it may cause heater problem, we have used tungsten
And second feature is about its battery life. Its playback time up to 72 hours and it can be expandable from 8 to 10 hours. And third feature is our voice assistant, which supports Android or iOS both on single press. And the next feature is noise cancellation, which is useful to avoid background and unwanted noises. And fifth feature is bass booster, which is useful for increase the power of the sound. And the last feature is lightweight design, so it is very comfortable to wear. So here for our target, we have eco-conscious consumers, in which we are positioning for the consumers who are environmentally conscious and who opt for a more sustainable and renewable technologies. And we have outdoor enthusiasts. We are targeting the people who are more into outdoor activities like camping, hiking, and sports. And also for tech and gadget enthusiasts, the consumers who are more into technologies and new innovations may like our product, and also the people who travel more, they opt for a more sustainable. People who are more engaged in fitness may like our product, and educational institutes and students. We may target the students who are college going and people who often go for work. We can promote our own websites for buying or purchasing our headphones and B2B, so that we will use Amazon and Flipkart as B2B, because many customers are there to buy the product and it will help us to promoting our product. Next, the competition. There are many products with whom we are competing, like Boat and Sennheiser and many other products. So our existing competitors are Boat, Bose, Jabra. These are, but we have advantage of unique selling proposition, as we are selling here solar panels, which is not used by any other company yet. Then product differentiation. Our product is totally different by others, as it has solar panels. Good evening, ladies and gentlemen. This is Tohit Tyagi and he is my co-partner Prashant Bhati. Today here we are presenting our product Quick Sizzle. Say no to cold meal. इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको नोटिफाई करेंगे खाने के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, खाना बताएंगे कि खाना आपके लिए हेल्दी है कि नहीं है, कब रेडी हुआ कब नहीं हुआ। उसके अंदर 3 इंडिकेटर्स आपको दिए जाएंगे, जो एक आपको ये बताएगा कि आपका खाना गर्म होना शुरू हो गया है, दूसरा आपको बताएगा कि खाना खाने के लिए रेडी है, और तीसरा जो बताएगा कि खाना ओवर हीट हो रहा है, इसको बंद कीजिए और खाना खाइए। नाउ हमारी टारगेट ऑडियंस सबसे पहला बिजनेस प्रोफेशनल्स, जैसे दुकानदार हो गए या जैसे एम्प्लॉय हो गए, 9 to 5 की जॉब करते हैं। दुकानदार सुबह से आके शाम तक अपनी दुकान पे बैठ जाते हैं, और वो सुबह घर से खाना ले आते हैं, फिर लंच करते हैं तो उसमें खाना ठंडा होता है, और जैसे ठंडे खाने में टेस्ट नहीं आता, उसमें खाने में मज़ा नहीं आता। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि ये खाने को गर्म कर देगा, खाना अच्छा रहेगा, उन्हें खाने में मज़ा आएगा, उनका मन करेगा। दूसरा फिर आता है स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, कुछ अपने घर से आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, बीच में लंच करते हैं, उनका भी खाना ठंडा हो जाता है, उन्हें भी वही सेम इशू कि खाना ठंडा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। The third one is traveling enthusiasts. These traveling enthusiasts are those persons. So स्मार्ट डिवाइस अवेलेबल है। यस मैम, व्हाट इज द डिफरेंस? मिल्टन का अवेलेबल है मैम, बट मिल्टन एक तो कॉस्टली है, दूसरा एफिशिएंट नहीं है मैम। इसके अंदर ऐप कनेक्टिविटी है, मिल्टन में नहीं है।
दूसरा, ये मिल्टन टाइम लेता है 25 to 30 मिनट्स खाने को गर्म करने में। हमारा प्रोडक्ट सेम खाना गर्म करेगा सिर्फ 10 मिनट के अंदर। So Mr. is saying app enabled heating, so app से enable है। No menu radius is required, इसका मतलब मेरा फोन कहीं पर भी हो तो ऐसा नहीं है कि मुझे बाजू में खड़े होना है। Alexa and Google Assistant compatible, तो Alexa भी स्टार्ट करवा सकते हैं। Then टेम्परेचर रिटेंशन है, मतलब खाना गर्म होने के बाद वातावरण करेंगे। शेड्यूल्ड हीटिंग भी है और जियो टैग हीटिंग भी है। जियो टैग मुझे समझ नहीं आया कहाँ से, बट जैसे जो पर प्रोडक्ट जो कॉस्ट आ रही है वो 1600 रुपये आ रही है और मार्केट में सेल आउट का जो कॉस्ट है वो सिर्फ 2000 रुपीज़ है। वहीं मिल्टन का इसे बहुत कॉस्टली है सर, और सेम चीज़ सेम क्वालिटी अच्छी आपको सस्ते में प्रोवाइड हो रही है तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे सर, मार्केट ज़्यादा अचीव होगा। You are coming with your product, so basically your product needs marketing. Exactly. So when you are coming with that product in low cost, and Milton is already known company or let's say known product, so products are known, so people will go for Milton after yours unless you have marketing. अब अगर कोई चीज़ हमें 2000 रुपये में मिल रही है तो जाहिर सी बात है वो ट्राई करना चाहेंगे। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि मार्केट में प्रोडक्ट एक्सेस नहीं करते हैं, दुनिया का हर प्रोडक्ट आज के टाइम में मार्केट में एक्सेस करता है, बट नई नई कंपनीज फिर भी इंटरेक्ट हो रही हैं, उनको चलती नहीं है। और ये एक्सपी होनी चाहिए और आप प्रॉब्लम द लाइक सेम ना। आजकल जो ऑफिसेस हैं वो सारे जितने भी मल्टीनेशनल्स हैं वो कोई भी एनर्जी सोलर एनर्जी तो है ही नहीं वहाँ पर। मैम ऑफिस में सिक्योरिटी होगी ना ध्यान रखने के लिए, उसके लिए आपको नीड नहीं है मैम। एग्जाम्पल you don't have to keep there is a panel or a base which needs to be recharged and then ये है, लेकिन मैं दाल चावल लेकर मैं थोड़ी जाऊँगी। मैम एक्चुअली वो सोलर पैनल जो हमने लगाया है ना वो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए लगाया है, खाना जो गर्म होता है एक घंटे में बैटरी रिचार्ज हो जाती है। इसको दोबारा रिचार्ज कितना करेगा सर? मैक्सिमम सर 2 बार खाना गर्म कर सकता है पूरी तरह से। I am a student of SBM BCom Honors फर्स्ट ईयर। सो रिसेंटली मेरे बहुत सारे दोस्त ने, किसी ने हेडफोन लाया, किसी ने लंच बॉक्स लाया, किसी ने टॉयलेट लेके आया। तो मैं सीरियस एक प्रॉब्लम लेके मतलब बताना चाहता हूँ और मैं उसी चीज़ पे करना चाहता हूँ अपना वर्क। सो रिसेंटली लास्ट ईयर का अगर हम डाटा देखें, हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड है, ठीक, पर हम जो फार्मर है हमारे उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, सब अपने बारे में सोच रहा है, अपने खाने पीने का, अपना ज़िंदगी का। पर रिसेंटली लास्ट ईयर का अगर हम डाटा देखें, जस्ट एक महाराष्ट्र में हमारे 1322 फार्मर ने सुसाइड किया। अगर ओवरऑल हम अपने पूरे इंडिया का डाटा देखें तो 5295 फार्मर ने अपना सुसाइड किया, और ओवरऑल लेबर को अभी हम ज्वाइन करें तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास में इतने सारे वर्कर जो डी ग्रुप हैं और फार्मर मिलके उन्होंने सुसाइड किया। तो किसी ने मतलब सीरियस प्रॉब्लम लेके नहीं आया। मैं भी सोच रहा था क्या करूँ, एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी में जाना है, तो मैंने जस्ट एक कोर्स पकड़ा, तो मैंने जस्ट जूते का कंपनी लेके आया। हाँ, तो लास्ट वीक हम अगर जो भी न्यूज़ से अपडेटेड रहते हैं तो लास्ट वीक हम लोगों ने एक न्यूज़ सुना था, साइक्लोन तमिलनाडु में आने की वजह से एक किसान को उसका 1000 हेक्टेयर का लैंड बर्बाद हो गया और उसने बनानास का ट्रीज किया, मतलब ग्रो किया था, कल्टीवेट किया था। तो उसके वजह से उसे 50 लाख का नुकसान हुआ। उसने गवर्नमेंट के पास गया, अभी बहुत सारे उसके चल रहे, फिर भी गवर्नमेंट अभी उसमें बहुत सारे चेक करी है कि हाँ ऐसे हुआ, ये उसको कितना मिलना चाहिए, पर वो प्रॉपर वो भी ऑलमोस्ट सुसाइड के एंड पे था। मैंने न्यूज़ 24 का डाटा देखा तो उसने ऑन कैमरा बोला कि अगर मुझे नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो किसी ने ये सीरियस जो फार्मर है हमारे उसके बारे में नहीं सोचा, इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचा। तो
मैं शूज़ लेके आया हूँ जो कि मेड ऑफ बनाना से है और होटल है बहुत अच्छा। तो मैं गया था वहाँ पे, तो जो उनके टॉवल थे, तो उन्होंने जो टॉवल थे मेरे रूम में, मैंने उसे यूज़ किया, तो वो टॉवल मेड ऑफ बनाना स्ट्रीम से था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी आइडिया वो देख के। तो मैंने वो स्टाफ से कांटेक्ट किया और फिर मैं बाहर गया तो वहाँ पे देखा कि उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे अब धीरे धीरे वो लोग फार्मर के बारे में सोच रहे हैं, इस टाइप का आइडिया आ रहा है। तो मैं और सारे भी रिसर्च किए, तो हाँ, इंडिया में और वर्ल्ड में 2 हमारे मतलब शूज़ मैन्युफैक्चर है जो कि बनानास और बेम्बू शूज़ से बनाते हैं। अब मार्केट और उसके बारे में मैं बता दूँ, बेनिफिट मैं बता देता हूँ। बेम्बू शूज़ का ऑलरेडी लिखा हुआ है और बनाना शूज़ का भी है। ये एक लाइट वेट शूज़ रहेगा। बनाना शूज़ हमारे फायर रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि वो फायर को झेल सकता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एंटी माइक्रोबिक, जो कि स्मेल हमारे शूज़ में अभी भी इंडियन में 60% ऐसे लोग हैं जिनका शूज़ मतलब कहीं भी पब्लिक प्लेस में निकाल दे तो स्मेल करने स्टार्ट कर देता है और बहुतों को हेजिटेट फील हो। बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों नहीं हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचें। तो मैंने सोचा जो सोल हम लोग जो बनाएंगे वो प्लास्टिक वेस्ट से बना रहेगा। इवन जो बॉटल होता है, हम लोग चिप्स के पैकेट खाते हैं और जो हम लोग प्लास्टिक लेते हैं, इवन वो टिन जो प्लास्टिक होता है, टिन प्लास्टिक का बैग से हम लोग शूज़ बना सकते हैं। जो सोल रहेगा हम लोग वहीं वेस्ट मटेरियल से यूज करेंगे और वर्ल्ड स्टैंडर्ड हम लोग बना के रखेंगे। सेकेंड, ये प्रॉपर्टीज़ ये सब हो गया, कैसे बनता है ये सब प्रोसेस। हाँ, तो कंपटीटर का सबसे बड़ा खेल है यहाँ पे। जब भी हम बिजनेस करें तो कंपटीटर के बारे में बहुत जल्दी सोचते हैं, क्योंकि अगर कंपटीटर है तो कल को खा भी जाएगा तो क्या करेंगे बिजनेस लेके। तो 2 कंपटीटर है हमारी वर्ल्ड में। एक वर्ल्ड में टॉम्स, 8,000 is not expensive for shoes. and if I says I will provide same shoes for 1,500 या 1,000, Okay. I want to make a comfortable shoes for everyone, every Indians. Aquas, yes sir, on the top. Yeah. Question. आप कह रहे हैं कि आप फार्मर का भला सोच रहे हैं। हिंदुस्तान में ओवरऑल फार्मर्स का हर फसल का बहुत नुकसान होता है, तो आप बैम्बू ट्री और सिर्फ बनाना स्ट्रीम खरीद कर फार्मर का कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस चीज़ पे भी आना चाहूँगा। आपने क्वेश्चन उठाया। देखिए, अगर मैं बिजनेस करना चाहूँगा तो मैं मतलब सोशल वर्क तो कर नहीं रहा हूँ, मुझे पैसा आएगा तभी तो मैं सोशल वर्क भी करूँगा। ठीक, उसमें फार्मर्स का क्यों ले रहे हैं? हाँ, तो सुनिए, तो एट फर्स्ट सुनिए तो पूरा बात आप जहाँ कह रहे हो। ठीक है, तो पहले बनाना स्ट्रीट, ठीक है, बनाना जब हमें मिल जाता है, जो बनाना रहता है, उसके बाद हम तो स्ट्रीम के बारे में सोचते नहीं है, वो तो फेंक देते। हमारा जो शूज़ रहेगा वो बनाना स्ट्रीम से बना रहेगा। बेम्बू शूज़, बेम्बूज में क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम बेम्बूज को एक तो पानी देना नहीं पड़ता, ना ही फर्टिलाइजर, ये सब कुछ नहीं देना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली अगर कल को काटो तो 1 हफ्ते के बाद वहाँ पे फिर से एक नया छोटा सा आ जाता है। तो इस चीज़ का। और फार्मर के बारे में जहाँ तक आप बोले हैं, हम लोग इसीलिए अगर बनाना जब वो सेल कर देता है तो स्ट्रीम बच जा रहा है, तो हम उन्हें एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जब हमारा कंपनी ग्रो हो जाएगा तो हम 30% जो भी अपना इनकम है वो फार्मर को प्रोवाइड करेंगे कि हाँ, वो और जो भी उनका नुकसान होगा हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि वो और ग्रो कर पाए। Azaz to present their PPT. आज हम बात करने वाले हैं जो फेक न्यूज़ वगैरह जो प्रिवेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा जो सर्कुलेट होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं और फ़ोटोज़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमें सोर्स पता नहीं होता है और हम कुछ भी फ़ोटोज़ पे टेक्स्ट ऐड करके और हम उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रेसपिक्स, जो कि एक इमेज आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन है, जिसमें अगर हम कोई भी फ़ोटोग्राफ्स हम उसमें अगर हम स्क्रीनशॉट अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो वो उसके बारे में सारी डिटेल्स दे देगा। और ये ऐसे काम करेगा कि हम जो भी फ़ोटोग्राफ्स कहीं से भी हम ले रहे हैं या फिर हम क्लिक कर रहे हैं या फिर उसको हम स्कैन कर रहे हैं स्क्रीनशॉट को, तो उसमें है नहीं, बस हम फ़ोटो को स्कैन करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा सा लोड होने के बाद उसका सारा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा हमें यहाँ पे। और जो हमारा यूज़र इंटरफेस है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकता है।
नहीं, इसमें ऐसे फ़ोटोज़ होंगे जो कि हिस्टोरिकल हो जाएंगे या फिर जो पब्लिक से रिलेटेड होंगे, तो ऐसे फ़ोटोज़ हम उसमें ऐड करेंगे और उससे रिलेटेड होगा किसी का पर्सनल। हाँ, ये पब्लिक के लिए ही है। पब्लिक के लिए किसी भी फोटो को स्कैन कर तो वो अगर हम पर्सनल फ़ोटोज़ हम अगर उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो उसका इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। जो सर्कुलेट हो रहा है और जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है फ़ोटोज़, तो वो उसका इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे अगर किसी को फेक न्यूज़ अपलोड करनी है, हाँ। आईपी एड्रेस चेंज करने के या हैकर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। वो आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, तो वो उसमें कैसे बताएं? तो वो चीज़ हम एप्लीकेशन में ऐसा एल्गोरिदम बनाएंगे जिसकी वजह से वो हमें रियल इन्फॉर्मेशन दे, ना कि फेक वाला। इसके तरह ना we have genuine ICT stack which do basically the same thing you are showing us. नो, ये जो एप्लीकेशन है ये आपको ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, जो कि वो जो एप्लीकेशन आप बता रहे हो वो उस पर वैसा नहीं है, और हमारे यूज़र इंटरफेस उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये सिर्फ एप्लीकेशन सिर्फ फ़ोटो और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, और उसमें ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा और डिफरेंट है। Good afternoon everyone. My name is Sakshi Chaudhary and I am from School of Journalism and Mass Communication. Basically आज हम लोग जनरली देखते हैं कि आज के ज़माने में कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता है कि वो कब कहाँ कौन से वर्ड्स को यूज़ करें। जैसे कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पे ये कुछ कमेंट्स कर दिए थे, जो कि जो जितने भी मोदी ग्रुप के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था। तो हम आज लेके आए हैं प्रीसाइजली, इंस्क्राइब विद प्रीसाइज। ये एक प्रोटोटाइप है, ये सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है, इसके लिए हमने अभी आगे वर्क नहीं किया है। डिक्रीज ऑफ कंट्रोवर्सी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइटिंग, इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ एथिकल सेंस। तो ये काम ऐसे करेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाकी ऐप्स अभी तक जितने भी है, जैसे कि ग्रामरली ले लो या फिर आप वर्ड पे जो भी हम काम करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यू आर राइटिंग, राइटिंग की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो इसके नीचे इसने एरर बताया। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इसके लिए और भी ऑप्शंस थे। अगर ये बिजनेस आइडिया तो पैसा कैसे कमाएगा? अरे मैं यहाँ पे बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करी हूँ, अभी हमने फाइनेंशियली या फिर टारगेट ऑडियंस ये सारी चीज़ों पे डिस्कस नहीं किया है। इट्स जस्ट एन आइडिया। आइडिएशन स्टेज पे है, प्लानिंग स्टेज पे। ट्वीट करना सबको पसंद होता है, पोस्ट लिखना सबको पसंद होता है, लेकिन आप बहुत सारे मतलब 70 और 75% ऑफ पीपल, उनको ये पता नहीं होता है कि कौन से वर्ड लीगल है और एथिकल है। तो ये इसको ये ना कि सिर्फ वर्ड को रिकॉग्नाइज करेगा बल्कि पूरे सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड्स है तो फिर उस पर जब टैप करेंगे उसके नीचे एरर आएगा, जब टैप करेंगे तो पॉजिटिव सिनोनिम्स आपको प्रोवाइड करेगा जहाँ से आप उसको करेक्ट कर सकते हो। गूगल वर्ड्स में जो मिस्टेक्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है, ना कि होल सेंटेंस को। तो जैसे अगर फोर ब्लैक डाइड इन अ वर्ड, जब हम ये सेंटेंस लिखेंगे तो गूगल इस पे नीचे ब्लैक के नीचे एरर नहीं डालेगा, क्योंकि गूगल नेगेटिव वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ग्रामर चेक करता है वो। ये बेसिकली वोकैबुलरी रिकग्नाइजेशन ऐप टाइप्स है। Negative words, negative words. Yes, we have got the evaluation sheet, right? First of all, at the outset, I would like to extend, my thanks and gratitude to the School of Journalism and Mass Communication for inviting me as a judge, right? And my compliments and best wishes really to all the participating teams. I mean, whatever you have presented has been very good. Some of the participating teams had very fabulous ideas also. We have evaluated on different parameters. See, some of the ideas which impressed us, right, are about the quick sizzle team, right? See, the hallmark of any kind of a business plan is the innovation that you have used, right? Any USP, because some of the teams while they were presenting their ideas, they were not highlighting their USP. Though the ideas had some USPs, unique selling propositions, but you failed to highlight them, right? That is your selling point basically. In management, whenever we teach our students or whenever we train them, we always tell them that you have to basically highlight that you have to sell. I mean, there has to be certain selling points which you can put across to your prospective customers. Similarly here also, whenever you are presenting any idea,
you need to highlight your USP, that is unique selling points. Some of the ideas were very innovative, as I said, right? And then what are your plans in terms of attracting the investors who can invest in your different plans, right? So again, as I said, I mean, few ideas which were presented, captured everybody's imagination. They impressed us also. And I wish all of you the very best of luck. May you succeed in your projects. May you be able to take your plans when it comes to implementing or the execution part. You should be able to do that. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much.